online class of Shivaji Group of Institutions, and today we are going to continue with chapter 17 with exercise 17C. Okay? So let's see what is the first question. The first question is two lines AB and CD are cut by transversal EF that we can do. So let's come on to question number 2, which is saying in the given figure AB parallel to CD. Question number 2. Look at the question number 2. AB parallel to CD. There are two lines AB parallel to CD. EF is a transversal. And angle 8 is given 110 degree, and we have to find all the angles. Okay, so what is given? Angle 8 equals to 110 is given. Okay, so we have to find it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so how do we find it? Can you see? 110. We know that whenever this line intersect, this is called vertically opposite angles. This ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है. So एंगल 5 क्या हो जाएगा? एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, तो वो भी 110 हो जाएगा. ओके, एंगल 5 को छोड़ के 110. ओके, नाउ वी कैन सी this is the parallel line. Okay, AB and CD are parallel lines, so the interior angle will be equal. That means angle 4 will be equal to angle 5 and angle 3 will be equal to angle 6. Angle 5 is what? Because they are, since AB parallel to CD, then exterior angle 1 equals to angle exterior angle का क्या होगा? ये and angle 8 is equals to angle 8. Angle 8 क्या है? 108 है. और कौन सा exterior angle है? Angle 2 will be equal to angle 7 equals to angle and interior angle. Interior angle कौन सा दिया है? Angle 5 angle 3 and angle 6 equal है. Angle 4 and angle 5 equal है. So angle 4 equals to angle 5. Angle 5 क्या है? 110 है. ये भी 110 है. और क्या दिया? एंगल 1 इक्वल्स टू क्या कर दिया? एंगल 1 इक्वल्स टू 110 कर दिया. एंगल 8 तो दिया ही हुआ है. एंगल 8 110 कर दिया, तो एंगल 5 भी कर दिया 110. एंगल 5 and angle 4 equals to 110. एंगल 1 and angle 8 equals to 110. Now you can see angle 3. Angle 3 angle 1 110 मिल गया. Okay, we know that एक straight line है. ये straight line ये angle कौन सा होता है? ये angle 3 will be equal to 180 minus 110 equals to 70. So angle
और इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, ये मैंने लिखा है किस वजह से, इसी वजह से। ट्रायंगल एंगल 3 है 70 एंगल 2 क्या आएगा, एंगल 2 कैसे मिल जाएगा, एंगल 4 भी 180 है, ये एंगल 180 माइनस 180 है। एंगल 3 है एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट है तो वो भी 170 हो जाएगा। फिर क्या बचा एंगल 6 भी 70 हो जाएगा बिकॉज एंगल 6 एंड एंगल 7 सिमिलरली हम ऐसे निकालते हैं, एंगल 7 भी 70 हो जाएगा। What is question number third? Question number third comes first. In each of the following figures, AB parallel to CD and EF is a transfer. So find each one of the unknown angles x, y, z in each case. So यहाँ पर 3 questions दिए हैं। इसमें से x, y, z के पैरेलल को एंगल से फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कैसा है, AB पैरेलल टू CD, दिस इज A B CD, ये ट्रांसवर्सल है, ये XDP, देन ये OM कर देते हैं, YDP, and this is Z. We have to find the value of x, y, and z. This is given to what is given. First write what is given. Given क्या है? कि angle BOM angle BOM is given is equals to 55 degree. Okay, you have to find x, y, z. So you can see vertical x is equals to 55 degree because vertically opposite angles, so x is equals to 55 degree because of vertically opposite angles. Okay, then how to find y? तो x ने दिया मुझे 55 डिग्री, because ये पैरेलल लाइंस है, because ये पैरेलल लाइंस है जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू 55 डिग्री मिलेगा। ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल अगर हमें चाहिए ये 55 डिग्री हमें चाहिए z की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
now z is equals to 180 minus 1. कैसे किया ये? Because of linear pair. Z is equals to 180 minus 5, meaning 180 minus 25. So Z क्या रहेगा? 125. Okay? So these are the answers. Now you have to do the second and third. Okay, now let's another question 4 is also similar to it. Now let's see what question 5 is saying. Question now let's see question number 5. It's saying in the given figure AB parallel to CD if angle BAC is this and angle ACD is 2x plus 45 degree. Find the value of x. You have to find the value of x if this figure is given. Okay, let's first draw the figure which is saying AB parallel to CD. This is AB parallel to CD, and this angle is given 3x plus 15, and this angle is 2x plus 45 degree. So हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड BAC एंड एंगल ACD फाइंड करना है. तो गिवन क्या है? एंगल BAC दिया है, एंगल C is equals to 2x plus 45. To find x is equals to this angle BAC and angle ACD. So how do we do it? We know that ये पैरेलल है. We don't know that this is a parallel one. So how do we find it? For two lines, this for two parallel lines AB and CD. जब भी कोई two parallel lines होते हैं इसमें कोई ट्रांसवर्सल होता है तो उसके कोइंसिडेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो this इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए कौन सा AC ट्रांसवर्सल है? तो हम पहले लिख देते हैं for two lines for AB and CD. AC is a transversal then क्या होगा? 3x plus 15 plus 2x plus 45 सप्लीमेंट्री हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंट एंगल. बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 3x plus 2x 3x plus 2x 5x 14 plus 15 60 is equals to 180. 5x is equals to 180 minus 60. 5x is equals to 120. X is equals to 120.5. X is equals to इसको डिवाइड करने से 24 आता है. X is equals to 24. X की वैल्यू क्या है? हम एंगल BAC एंगल ACD निकालते हैं. एंगल BAC क्या है? 3x plus 15 है. 3 into 24. अब हम इसके वैल्यू पर सब पुट कर देते हैं.
Now question number 6. Question number 6 is, what is question number 6? In the given figure AB parallel to CD, find the value of x. We have to find the value of x if this figure is given. Okay, first we draw the figure AB parallel to CD. It's something like this. M C O A P then AB parallel to CD. This is 2x degree. This is 100 degree. यहाँ पर लिख दिए हैं through M draw E and F parallel to AB parallel to CD. मतलब हम E and F बनाएंगे. EMF this is 3x. यहाँ से एक पैरेलल टू AB. AB कहाँ है? AB and CD. This is the question. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे MF पैरेलल टू AB. MF हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है आपसे M through M MF पैरेलल करेंगे AB से and CD से. Okay, so first of all we'll write construction. क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? E MF parallel to AB parallel to CD. Okay, then फिर एंगल क्या है? PAB is equals to एंगल AMF. ये एंगल क्या है? इक्वल हो जाएगा बिकॉज़ हमने टू लाइंस पैरेलल हो गई ये ट्रांसवर्सल. तो दिस फॉर दिस दीस टू पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा. ये देखिए ये टू पैरेलल लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गया. तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बिकॉज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ये एंगल इक्वल हो जाएगा. तो दिस एंगल एंड दिस एंगल will be equal 3x. ये भी हो जाएगा और ये टोटल होल एंगल क्या है? 100. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इतना छोटा सा एंगल भी कौन सा हो जाएगा? 100 minus 3x. ओके, तो क्या करेंगे हम? क्या किया? एंगल
ये हमें ये मिला, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब आप देखिए MCD एंड DCO, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखिए ये टोटल 180 होता है, इतना हमें पता है, 2x हमें दिया हुआ है, तो हम ये निकालेंगे कि 180 माइनस 2x करके, बिकॉज लीनियर है, जब स्ट्रेट लाइन या कोई दूसरी रेव को वहां से एंगल बनता है तो उसका टोटल एंगल क्या होता है? दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इस तरह से हम ये एंगल निकालेंगे, कौन सा एंगल? DCM या MCD। एंगल MCD कैसे निकालेंगे ना? एंगल MCD प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल DCO क्या दिया हुआ है? DCO 2x दिया हुआ है, एंगल MCD निकालना है। MCD प्लस एंगल DCO 2x इज इक्वल टू 180। एंगल MCD क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2x। Then एंगल MCD की क्या है? FMC और MCD का रिलेशन है। एंगल दिस एंगल FMC and एंगल MCD, where MCD इस एंगल में और इस एंगल में कौन? ये देखिए, for two parallel lines FS and CD, ये कोई इंटीग्रल एंगल हो गए। जब कोई टू पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल कोई इंटीग्रल होता है, और कोई इंटीग्रल एंगल सप्लीमेंट्री होता है, दैट मींस उनके एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। सो अब हम कोई इंटीग्रल एंगल कर देंगे, एंगल FMC प्लस एंगल MCD इज इक्वल टू 180, बिकॉज़ ये कोई इंटीग्रल है। FMC क्या है? 100 माइनस 3x प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू 180। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये 280 हो गया, माइनस 5x इज इक्वल टू 180। देन 280 माइनस 180 करेंगे इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। 5x is equals to 100, x is equals to 100 upon 5, x is equals to क्या वैल्यू दी है x की? x is equals to 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 20। ये फाइंड करना था, एंड दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड देखिए। each of the figures given below AB parallel to CD find the unknown angles given reasons। हम लोग को ये फिगर्स दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD है, सो हमें unknown angles फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड इट? फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर, AB पैरेलल टू CD।
ये z दिया है, ये 70 दिया है एंड दिस इज y। तो इस तरह का कुछ फिगर है, हमें ए बी सी डी निकालना है। मैंने क्या दिया हुआ है, सिर्फ देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी हमें दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, दैट मींस इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ए बी और सी डी में जब वो पैरेलल है तो ई एफ, ये देखिए ये इसको कट कर रहा है, दैट मींस ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ये जब कोई ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल ओके। तो फर्स्ट लेट्स सी एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑल्टरनेट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB लिख लेते हैं, या BCD एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD हो गया। क्यों? इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको इक्वल हो गया, दैट मींस एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। तो z हमें मेरी z की वैल्यू z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, z की वैल्यू लेते हैं। देन क्या होगा, एंगल BAE प्लस BAC, एंगल BAE प्लस एंगल BAC, ये एंगल आप ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये लीनियर कैसे निकल जाएगा, इसका 180 माइनस 130 करेंगे तो लीनियर कैसे आंसर इसका आ जाएगा। नाउ सी एंगल BAC is equals to angle BAE plus angle BAE is equals to 180। तो angle BAC निकालना है, equals to 180 minus BAE क्या है, BAE 130 दिया हुआ है। angle BAC क्या निकलेगा, 50 डिग्री। angle BAC क्या निकलेगा, 50। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, ये वैल्यू क्या निकल रहा है, 50 डिग्री। z हमें मिल गया कितना, 70, z इज इक्वल टू 70 मिल गया। ये हमें मिल गया, ये एंगल निकाल सकते, y से निकाल सकते। किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या, y निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है, BAC, plus 70 plus y is equal to 180 हो जाएगा। 50 plus 70 कितना हो गया, 120 plus y is equal to 180। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 minus 120। so y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 minus 120, 60। y is equal to कितना है, 60। हमें z मिल गया, y का x कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू है 60। तो अब लीनियर ट्रेड से sum of all the angles in a straight line is 180। ये x को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 60 यानी कि एंगल BCA प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCF is equal to 180। एंगल सब प्रॉपर्टी से ठीक है। एंगल BCA क्या है, 60 plus 70
की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130 x इज इक्वल्स टू 50 यानी x निकाला y निकाला z x इज इक्वल्स टू 50 y इज इक्वल्स टू 60 z इज इक्वल्स टू 7 नाउ अब बाकी क्वेश्चन सिमिलर है आप ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके तो अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर आप इसके जितने भी क्वेश्चंस लेफ्ट हुए वो आप अपने नोटबुक में